Hey friends, my name is Akshay Mantri and I am here with a video on Lean System and Innovation, a chapter from CA Final SCMP. So what to expect from this video? You will get the structured format to the chapter, the concise bird eye view of the chapter, like which all concepts you need to study in this particular chapter and the subtopics of those particular concepts. And for few, I'll share the mnemonics and memory techniques of some relevant theoretical concepts in this particular chapter. So let's start with this chapter without wasting any time. So the chapter name is Lean System and Innovation. So first concept we need to learn in this chapter, we need to study in this chapter is Lean System. And in Lean System we have four major subtopics. So first subtopic is 7 types of waste. Now the mnemonic for 7 types of waste is वो मित्रों, वो याद है, वो मित्रों, waiting, over processing, motion, inventory, transportation, rework from defects, and overproduction. The second concept is techniques of lean systems. So techniques are nothing but the subtopics of this particular chapter, which is JIT, just in time, Kaizen costing, 5S, TPM, cellular manufacturing, then Six Sigma. Right now, moving on to the principles of lean system application. So what are the principles of lean system application? There are four principles of lean system application. First, perfect time, first time quality, waste minimization, continuous improvement, and flexibility. Now what are the characteristics of lean manufacturing? So characteristics of lean manufacturing, there are 5 characteristics. 0 0 pull, continuous, 0 0 pull, continuous. What is 0? 0 wait time, 0 inventory, pull processing, continuous, flow of production and finding ways of reducing process time, Now moving on to the next concept in this chapter, which is very important, JIT, from theoretical as well as practical perspective. So JIT, just in time, JIT purchase. Now in JIT purchase we only procure material when there is requirement for production, and in JIT production it is based on actual demand for the product. If there is an actual demand for the product, we will start the production process. So now key factors or prerequisites for implementing JIT, I have divided it into major 3 categories, which is manufacturer related, supplier related, and production related. So manufacturer related, manufacturer receives material at exact date and exact time. Manufacturer efficiency of workforce, should consider the efficiency of workforce. Supplier should be located in close proximity. Supplier should be willing to deliver frequent deliveries in small lots. And we should ensure the quality by visiting the supply site and examine the processes. Now production related, there are 2 points. Delivery should be sent directly to the production floor, and the production process should be detailed and integrated. How should be the production process? Detailed and integrated. Now overall these are the points. And one more point, continuous monitoring after implementation. We should monitor continuously after implementation of this particular JIT. Now there is another concept, savings and cost due to JIT. So savings, majorly the keyword is reduction in what? HIC, reduction in HIC, holding cost, insurance cost, and C for carrying cost. Holding cost, insurance cost, and carrying cost. What are the cost? SOECO, stock out cost, overtime cost, extra payment to supplier, contribution loss due to stock out, and overtime cost ho gaya. Then ordering cost, right? Ordering cost. So features of JIT system, the keyword for features of JIT system, remembering the features of JIT system is re से 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट reduced और 1 पॉइंट है respond, reduced और respond. ठीक है. सो reduced में क्या क्या? मटेरियल, लेबर, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, लेबर आइडल टाइम और मटेरियल रिसीट टाइम, ये सब क्या हो जाएंगे? reduced. और होगा एक रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फास्टर, और इनके अलावा एक और पॉइंट है, क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल. डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए अर्जेंसी बनाएंगे.
ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी विच इज नथिंग बट वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम इनटू 100. वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम इज इक्वल टू टोटल साइकिल टाइम. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज TAKT टाइम. TAKT टाइम मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड. सो अपन को मिल जाएगा TAKT टाइम. नाउ द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बैक फ्लश अकाउंटिंग. बैक फ्लश अकाउंटिंग मीन्स नो डेटा एंट्री अंटिल प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड. नो डेटा एंट्री अंटिल फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड. नाउ इसमें देर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स इन बैक फ्लश अकाउंटिंग. और वो सीरियस प्रॉब्लम्स क्या क्या है. स्लिप, SLIP स्लिप. S for scrap reporting, L for lot tracing, I for inventory accuracy और P for production reporting. Scrap reporting, lot tracing, inventory accuracy and production reporting. Now Kanban system, what do you mean by Kanban system? So Kanban system is the visual signboard for like it is a visual workflow management technique. Visual workflow management technique. And how do you calculate Kanban size? Kanban size is calculated by C into LT into L into SF. C into LT into L into SF. C is consumption, L is lead time, L for location, SF is smoothing factor. So L and SF generally are 2 and 1 respectively while solving the sum, but we need to check the question. Right now, number of Kanban, how do you calculate that? Safety stock plus consumption during lead period divided by Kanban size. Safety stock plus consumption during lead period divided by Kanban size. Factors or assumption or prerequisites of Kanban system. So all the assumptions and prerequisites total together makes the factors of Kanban system. So assumptions 2 है, prerequisite 3 है. और prerequisite majorly किसके related है. Supplier. Supplier कैसा. Ready, agrees and participate. Supplier should be ready to supply material in lot size equal to number of Kanban, and then supplier agrees क्या. Supply material at point of use, and then participates in पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री. सप्लाई सिंस हमने ऊपर देखा था लीन सिस्टम एंड इनोवेशन किसके बेसिस पे होता है. पुल सिस्टम के बेसिस पे. सो सप्लायर शुड पार्टिसिपेट इन पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री. देन assumptions 2 है. assumption consumption. Consumption is constant and space requirement. Now moving on to the next concept which is Kaizen costing. Kaizen costing Japanese word से आया है which means change for better. एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स इसके 3 हैं. क्या है 3? ESI. E से एलिमिनेटिंग वेस्ट, S से स्मॉल चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड फॉर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, I से इन्वॉल्व्स वर्कर. बेनिफिट्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग क्या है. बेनिफिट्स है रिलायंस कंपनी. याद रख लो रिल कंपनी. RILCO रिलायंस कंपनी. इसके बेनिफिट्स है किसके. काइजन कॉस्टिंग के. अब R से क्या है. रिड्यूसेस वेस्ट, I से इम्प्रूव टीम वर्क, L से लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एंड देन C से कॉस्ट रिडक्शन, एंड O से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. चेंजेस रिक्वायर्ड PCR. चेंजेस क्या रिक्वायर्ड है. PCR किस किस में. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर में, रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी में, और कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम में. क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम टू किस में जा रहे हैं अपन. कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम. कंट्रोल से रिडक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक चेंज हो जाता है. नाउ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा. सिक. एम्प्लॉय हमेशा सिक लीव लेते रहते हैं. सो निमोनिक इज सिक. अब एस से क्या है. एम्प्लॉय को हम कैसे देखेंगे. सॉल्यूशन प्रोवाइडर के नज़रिए से देखेंगे. आई से क्या हो जाएगा. इंक्रीज स्टाफ मोटिवेशन थ्रू एम्पावरमेंट. और फिर सी से चेंज इन कल्चर. देन 5S आता है. अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 5S में क्या है. 5 जापानीज वर्ड होते हैं अपने. सेरी, सेटन, सेइसो, सेइकेत्सु एंड शित्सुके. और इंग्लिश में बोले तो sort, set in order, shine, standardize, sustain. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. TPM का मीनिंग क्या होता है. अपन इसमें क्या देखते हैं. मशीन की फॉल्ट के वजह से कितने मतलब वेस्ट को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फॉल्टी मशीन्स को हटा के. सो मेंटेनेंस फिलॉसफी एम्ड एट एलिमिनेटिंग प्रोडक्शन लॉसेज ड्यू टू फॉल्टी मशीन्स और इक्विपमेंट्स.
नाउ फीचर्स या 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम क्या क्या है, इसमें 8 पिलर्स में क्या क्या है, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, प्लान मेंटेनेंस, अर्ली मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑफिस टीपीएम, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सो अब इसको याद रखने की कैसे टेक्निक मैंने बनाई है, एक ऑटोमेटिकली हमें फोकस और प्लान करना है और जल्दी करना है। कैसे करना है, जल्दी करना है। ऑटोमेटिकली हमें फोकस और प्लान करना है, कैसे करना है, जल्दी करना है, और कैसा होना चाहिए वो, क्वालिटी वाला। किस चीज़ के लिए, एजुकेशन, फिर बाद में जॉब पे जाएंगे तो ऑफिस, एजुकेशन और ऑफिस के लिए। सो यहाँ तक हमने पॉइंट्स कैसे याद कर लिए, ऑटोमेटिकली हमें फोकस और प्लान करना है, जल्दी करना है, क्वालिटी वाला करना है, किसके लिए, एजुकेशन और ऑफिस के लिए। सो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, प्लान मेंटेनेंस, अर्ली मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑफिस टीपीएम, और एक लास्ट पॉइंट होता है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये सब में हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, भाई जान है तो जहान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, माँ बीपीसी, मेंटेनेंस प्रिवेंशन एंड ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, फिर बाद में बीपीसी से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। नाउ TQM एंड TPM, इसमें क्या है, डिफरेंसेस क्या है इनके। सो TQM हमेशा क्वालिटी के बारे में बात करते हैं अपन, तो क्वालिटी पे फोकस करता है, और TPM हमेशा इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन लॉसेस हमें एलिमिनेट करने हैं, किससे, फॉल्टी इक्विपमेंट्स वो सब हटा के इम्प्रूव करके। सो क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट हम किस में करेंगे, TPM में, और TQM में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और दोनों ही कैसे इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में रिजल्ट करते हैं लास्ट में। और TPM इज़ द वे ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ TQM। अगर मशीन अच्छी रहेगी तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छी आएगी। सो TPM इज़ द वे ऑफ अचीविंग TQM। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन TPM, दो तरह से परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन TPM होता है। मेजर वन है 6 बिग लॉसेस, इसी के बेसिस पे OEE आता है। 6 बिग लॉसेस क्या क्या है, TSQ, टाइम, स्पीड और क्वालिटी के लॉस, टाइम, स्पीड और क्वालिटी के लॉस। अब इसमें भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं इसको, T को प्लैंड और अनप्लैंड में, और स्पीड को माइनस स्टॉप्स और रिड्यूस स्पीड्स, और क्वालिटी को RQ, रिड्यूस आउटपुट एंड क्वालिटी डिफेक्ट्स। OEE क्या है, इट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। कैसे कैलकुलेट होता है, A इंटू P इंटू Q। A इज अवेलेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन टाइम, P is performance which is based on this speed, and Q is quality which is based on quality. Now the next topic is cellular manufacturing. Cellular manufacturing में हमें क्या क्या देखना है, बेनिफिट्स देखना है, टाइप्स ऑफ मशीन सेल डिज़ाइन देखना है, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग देखना है, और रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम प्रैक्टिकल पोर्शन से भी ज़्यादा रेलिवेंट है। सो ये 3 टॉपिक्स हमें सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में देखने हैं। 6 सिग्मा में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, 4 सब कॉन्सेप्ट्स है। एक तो पहले हो जाएगा मीनिंग एंड बेसिक। मीनिंग क्या है, 0 डिफेक्ट्स लाना है हमें 6 सिग्मा से, तो ये हो गया उसका मीनिंग्स एंड बेसिक्स में। देन 2 मेथोडोलॉजीज क्या क्या है इसकी, DMAC, DMA, DV। DMAC कैसे लगाएंगे अपन, एग्जिस्टिंग में, DMA, DV कब लगाएंगे, न्यू में। और देन अब इसको याद रखने के लिए कैसे कि कौन सा एग्जिस्टिंग और कौन सा न्यू में लगाना है। सो एग्जिस्टिंग में IC है, IC इंटरनल कंट्रोल शुड बी एग्जिस्टिंग, ये हमने ऑडिट में पढ़ा है। सो IC इज़ फॉर एग्जिस्टिंग एंड DV फॉर न्यू। डिफरेंस बिटवीन DMAC एंड DMA, DV करेंगे। फिर बाद में इसमें एक और टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ 6 सिग्मा, ये भी हमें देखना है। और उसके बाद में प्रोसेस इनोवेशन एक कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर में। प्रोसेस इनोवेशन के बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये हमने IPCC या इंटर लेवल में भी पढ़ाई होगा ऑफकोर्स। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ड्रास्टिकल चेंज लाना है हमें, वो वाली चीज़ है। और इसमें हमें 5 टॉपिक देखने हैं। 4 की कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट या स्टेजेस ऑफ BPR विच इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे BPR की, और फिर इम्पैक्ट देख लेंगे BPR का क्या होता है। मेजरली 3 इम्पैक्ट होते हैं, वर्कर, सप्लायर और एनवायरनमेंट पे। ये 3 इम्पैक्ट होते हैं मेजर। और फिर बेनिफिट्स देख लेंगे इसके। इसकी निमोनिक्स है हाई MB फाइल। So this is all about this particular video of lean system and innovation. I hope this helps you guys also.
इसमें एक बहुत ही बर्ड आई व्यू मिल गया हमें कैसे चैप्टर को हमें अप्रोच करना है, राइट। एंड सो मेजरली वी नीड टू कवर 11 टॉपिक्स, और 11 टॉपिक्स में फ्यू सब टॉपिक्स है, और मेजरली मैक्सिमम सब टॉपिक कितने हैं, 5 है, और वो भी पाँचवा किस में है, BPR में। बाकी सब में छोटे छोटे ही है, 4 से 5 वैसे ही है, और किसी किसी में 2 है, JIT में थोड़ा ज़्यादा है। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स विच वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये है एक बर्ड आई व्यू ऑफ दिस चैप्टर। लेट मी नो इन कमेंट विच शुड आई पुट नेक्स्ट फॉर, कौन से चैप्टर का हमें नेक्स्ट वीडियो डालना चाहिए, राइट। सो आई होप दिस कवर्स इट, एंड all the best. If you like the video, do like it, share it with your friends, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और भी वीडियोस आएंगे ऐसे बहुत ही कंसाइज वे में आपको एक बर्ड आई व्यू देने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, एंड या ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। ऑल द बेस्ट, सी या।